what are key responsibilities of a web developer? What can you say about that? क्या क्या key responsibilities होती है एक developer की? Tell me. Okay, am I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Okay, okay. So tell me key responsibilities, roles and responsibilities being a developer, being a web developer in a company. So what exactly the expectation all that we have for just joining as always keep customer needs in mind. Okay. Yes. Okay. We should have knowledge about all the development languages, वगैरह HTML, CSS, and JavaScript. Sir. Okay. Anything else except this? Interact with customers on regular basis. Okay. Related and discuss related to our website. Okay. Anything else? See, being a web developer, this is not up to that. You are writing certain line of code or designing some web pages. This is one role. Except this, there are some other roles as well. You may have to work on a backend side as well, because there is interaction of user once with your website. So lots of data is going to be stored at backend. So you have to take care of and maintain that database consistency. So being a web developer, website development and website maintenance, both of these are major responsibility that you have to carry. Along this, what are the bugs and what sort of errors you find in the website in point of view of a client? So that at that time you have to make sure that there should be testing and debugging of all given web applications and web pages. Those are going to be published on web. So this is also a responsibility of being a web developer. Except this design, development, testing, and deploying web applications at client system. So if there is any error regarding that running environment, runtime environment, or in terms of design perspective, so that should be troubleshoot by a web developer. And uploading sites onto a server and registering it with different search engines. So this depends on that the cross behavior of websites, that how you are putting this on web. So this is also one of that role. So if you summarize these all responsibilities, you can say that you have to design first, then development and design, and then test it, and finally deploy at client system. So if you fulfill these expectations, then okay, yeah, you can be a good web developer. And one thing also, except this is if your website is for so long in the market and you see that traffic is there but not improving. So that is also one challenge as a web developer, that you have to make a website such attractive or interactive to the user friendly, so that traffic may retain on your website once someone is going to visit. And this is also a big challenge. Most of these challenges you see once there is a real life example of expo marts type of thing. So each and every year there are so many expo marts, and suppose some literature festivals, such occasions which happens each and every years, and you have to work on such websites where most of those clients are going to register and buying, seeing all those facilities and whatever that resources over there on your website as per their interest. So this is also a big responsibility, that traffic should be remain. It doesn't happen like that. Someone is coming
and just see your website and just go away. So this is a major challenge. Such events that happen continuously over a period of time. So this is under most of the companies work on for such real-time projects, and they work in that direction. So these all are responsibilities. Uh, if someone says, I have very good knowledge of HTML, I am very good at CSS, it's responsible. Okay, yeah, it is mandatory. It is mandatory. You should have knowledge of JavaScript. You work with Ruby, Python, HTML, CSS, Bootstrap. But end of the day, only the thing that traffic is going to be increase once they are uh, just purchasing your products and services. So make it such user friendly so that everyone can interact easily with whatever content you have published on internet. So this is that responsibility being a web developer in any company, and you have to work at front end as well as back end as well. So this is fun. Okay, next question is what web developer should know? क्या मालूम होना चाहिए ऐसे वेब डेवलपर अगर आप काम कर रहे हैं? ऐसी कौन कौन सी हार्ड स्किल या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए? Anyway, it's open discussion, so you may involve and discuss whatever you think. It's not so lots of answers are there, so you may go through and just drill it. Okay, these are the things that we may include as a skill set so that I can work according to this. But the main issue is this: whether what sort of skills you have, is it the requirement of the company or not? This is this is one of that key challenge, because HTML it's a long period of time that people are using such languages and scripting languages, and they work on development. So sometimes it happens that being a software professional, that you have to deal with new technologies as well. So simultaneously you are working on older ones, but company will request you, okay, go and certified in such current technologies so that you can work effectively as per modern scenario. So this comes under once you work with the corporate sector. And being a web developer, uh, as mentioned in most of that books, that you should know HTML, CSS, SQL, database, Oracle, Python, PHP, and lots of languages and technologies are there, and Ajax, jQuery, JavaScript. So whatsoever, but yes, it's up to the mark. No, nothing like that. You learn all sorts of languages, but once at the time of development or at the time of designing, you don't know how to react and how to design or develop certain web pages. So this is main challenge, and you should be ready for old technologies as well as new technologies, because it's not a one-way path that you travel and travel like that, but you have to deal with some latest skill sets as well. So this is that as a web developer you can say. Next is explain what is course, how does it works. तो ये टर्म शायद आपके लिए नया होगा. कोर्स जो होता है ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है. जो कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग. तो यहाँ पर आपके पास में ये डिपेंड करता है कि एक तरह की मैकेनिज्म होती है. It is just a mechanism that enables many of resources on a web page in a requested manner from another domain outside the domain from which the resource was originated. तो एक तरह से क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है. तो जिस डोमेन में आपको उसके बाहर के डोमेन से अगर रिक्वेस्ट होता है रिसोर्सेज को शेयरिंग करने का, तो उसको कराने का ये एक तरह का मैकेनिज्म है. So if someone asks you what exactly the benefit of this, so it's a cross sharing of resources from one domain to another domain, and it is a mechanism that's supported in HTML5,
ये कोर्स जो है वो HTML4 HTML5 onwards it is supported that manage XML HTTP request access to a domain different. तो different domains के लिए यहाँ पे जो feasibility है इस mechanism में वो HTML5 वर्जन में है और आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं outside the domain you are working with. So this is that how just course work at the time of web development. Now next question is list out the advantage of HTTP2 as compared with HTTP 1.1. तो इसको कोई मुझको समझाइए ये क्या होता है. You take your time. It's not like that कि क्वेश्चन पूछा तुरंत से आंसर दे दिया. You think and then reply. You may R&D also something because then this discussion will be beneficial. कि हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए तो. Advantages of HTTP2 as compared with HTTP 1.1. क्या क्या एडवांटेजेस हैं या जो अभी रिसेंट जो हमारे पास में इस समय जो वर्जन्स हैं उसके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं. ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग HTTP. ये हर जगह मिल जाता है जब भी हम कोई URL टाइप करते हैं तो हिट करते हैं तो HTTPS लिखा हुआ दिख जाता है. तो क्या पर्पस है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं when we have to access something on web regarding any information regarding any specific field. So what sort of Sir, it advantages consumes less bandwidth. Okay, this consumes less Bandwidth. Okay, this bandwidth facility is as per the ISP provider or he is going to decide or it's as per your utility as a customer or something else. सर HTTP जो होता है सर हमारी साइट को सिक्योर बनाता है सर. ये उसमें S लगता है, SSL सर्टिफिकेशन होता है जो थर्ड पार्टी आपको देती है. यस या तो वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है जिसमें आपको सिक्योर टोकन मिलता है. ये सर जो HTTP है सर ये अनसिक्योर. और सर ये HTTP 1.1 इसका वर्जन होगा सर. ये इसमें कुछ एडवांस फीचर ऐड कर दिए गए होंगे. Okay, see, there are various advantages of having this HTTP2 as compared with HTTP 1.1. So as we know that HTTP headers data compression में इसको हम कह सकते हैं यूज़ होता है HTTP2. उसके अलावा सर्वर पुश टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है जिससे लेटेंसी को हम कम कर सकते हैं, डाउन टाइम को हम कम कर सकते हैं. उसके अलावा ओवर सिंगल TCP कनेक्शन होता है, पैरेलल लोडिंग ऑफ पेज एलिमेंट्स. तो TCP कनेक्शन और UDP में आप जानते हो कि TCP स्लो होता है, UDP फास्ट होता है. जितना भी आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या ऑडियो कॉल आपका रहता है बाई फ़ोन तो वहाँ पर आप UDP यूज़ करते हो. जबकि जितना भी आपका ट्रस्टवर्थी या रीट्रांसमिशन टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो TCP के अंदर आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर आता है. तो अगर बाई द वे अगर हमारा इंफॉर्मेशन लॉस भी हो रहा है तो दैट विल बी रीट्रांसमिट. तो यहाँ पे एक तरह से ट्रस्टवर्थी कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है अगर हम इसको TCP के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. और UDP जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है. तो वहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यस टेल. सर ये HTTP होता है ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है सर. एक जो हमारा टेक्स्ट होता है उस किसी दूसरे यूजर के लिए या सर्वर से ले जाने लाने के लिए प्रोटोकॉल यूज होती है या कुछ प्रोटोकॉल होती है. हाँ. तो सर ये तो URL तो सर आपका ये IP में चेंज होता है. ये सर तो सर वो अगर किसी यूजर से हम अगर सर्वर से मतलब सर्वर से जो हमारे बीच का जो ट्रांसमिशन होता है उसको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है. उसके ये उसको मतलब ले जाने लाने का काम करता होगा. ओके, मतलब आप एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें सर्वर से आपका डेटाबेस कनेक्ट है. एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर्स होते हैं ना आपके. यस सर. जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको जो URL आप टाइप करते हैं वो आपका IP में चेंज हो जाता है और DNS जो होता है वो उसकी मैपिंग करता है, डोमेन नेम जो सर्वर सिस्टम होता है.
तो अगर जिस जिस आईपी का वो से रिलेटेड होता है, मैपिंग हो जाती है, तो वही पेज आपका ओपन हो जाता है। तो जब भी हम इसके एडवांटेजेस को समझते हैं, तो एक तो डेटा कॉम्प्रेशन में HTTP 2 जो है वो बेहतर काम करता है देन कंपेयर HTTP 1.1। दूसरा TCP कॉन्टेक्स्ट में भी काम करता है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, स्लो जरूर होता है, लेकिन ये पक्का है कि इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस आपके मिनिमल है। तीसरा इसमें मैंने बताया था सर्वर टेक्नोलॉजीज़ है, सर्वर पुश टेक्नोलॉजीज़ है। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आती है, बट ड्यू टू सम मेंटेनेंस वर्क ऑन द सर्वर वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो उस केस में जो है वो अगर आप पुश टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका जो डाउन टाइम है वो कम हो जाए। और obviously nowadays whether you are working on local storage or you are working on cloud storage, everyone wants whenever I need some data I should able to access that data. अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, पीक सर्विस आवर्स में बहुत ज़रूरी है। जितने भी वेंडर्स ऐसे हैं जो 100% एश्योर करते हैं स्टोरेज का और डेटा को अवेलेबल कराने का, मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ जाना पसंद करते हैं। तो जब भी हम इसके पिटफॉल्स देखते हैं, तो यही समझ में आता है कि डेटा का जो अवेलेबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, वी शुड हैव दैट एक्सेस राइट्स सो दैट वी कैन यूज़ द डेटा। अगर अब मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट्स है और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दिस इज मीनिंगलेस फॉर यू। सो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी क्लाउड स्टोरेज और स्पेस टू स्टोर योर डेटा, बिकॉज प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एज वेल एज स्टोरेज बोथ आर विल प्रोवाइड यू अ प्रॉब्लम। तो ये भी एक इसका एडवांटेज होता है दैट ओवर सिंगल TCP कनेक्शन दैट पैरेलल लोडिंग ऑफ पेज एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक साथ आप कई सारे पेजेस को मतलब पैरेलल लोडिंग चलती है पेजेस की। ये भी रहता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट आपने बनाई है जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, तो कई बार पेज लोड होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इट इज़ द इम्प्रूव वर्जन ऑफ दैट, वी डिडंट हैव दैट reach in HTTP 1.1 that we have done with HTTP 2। और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिक्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे भी एक तरह से हम शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं, जिसके बेसिस पर जो है वो प्रायोरिटाइजेशन होता है रिक्वेस्ट का। जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आती है उसके प्रायोरिटाइजेशन को हम डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो HTTP 2 एज कम्पेयर विद HTTP 1। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज एन Etag एंड हाउ डज इट वर्क। हु विल एक्सप्लेन? देखिए, ये जो मैं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग में स्टक होना चाहिए आपके। कभी अगर जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते तो इस तरह के, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये इंटरनेट से ही लिए हैं और कहीं से नहीं लिए हैं। तो डेफिनेटली वंस यू अपीयर फॉर इंटरव्यू, आप बताओगे कि हमने वेब डेवलपमेंट पढ़ा था 6th सेमेस्टर में। So that might be a question. There are hundreds of questions available on internet, but only the thing is that whether we are putting our heart and soul over there so that we can manage all these things, और हम इसको समझें और हमें ये पता है। तो ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है। जब भी आप अगर वेब डेवलपर प्रोफाइल में आप कंपनी में एंटर करते हो, तो that might be a question that you have to face. So explain what is an Etag and how does it work. An Etag is a opaque identifier होता है, ये opaque identifier होता है which is just allocated by web server। जो कि web server होता है उससे ये allocated होता है and server to a specific version of the resource found at a URL. So Etag is an opaque identifier which is allocated by a web server to a specific version of a resource found at a URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर जो आपका रिसोर्स होता है उसके थ्रू इसको एलोकेट किया जाता है बाय यूजिंग वेब सर्वर। Etag is a part of HTTP hypertext whole World Wide Web, once you consider for the World Wide Web, and then the server reads the Etag from the client request, the server can then tell whether to send the file or not। तो वो बता सकता है कि Etag को जब वो URL में दिखता है तो वो ये बता सकता है कि जो मुझे रिक्वेस्ट आई है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एंटरटेन करना है या नहीं करना है।
क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ URL, Etag इज अ पार्ट ऑफ URL एंड इट इज एलोकेटेड बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर इसको एलोकेट करता है, URL का पार्ट होता है। जब भी सर्वर के पास में वो URL जाएगा, सर्वर इज गोइंग टू रिक्वेस्ट, तो कैन डिसाइड ओके वेदर टू एंटरटेन दिस रिक्वेस्ट और नॉट। क्योंकि कई बार सर्वर रिक्वेस्ट को ड्यू टू सम फॉल्ट्स, कई बार डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस डीडॉस अटैक हो जाता है, डॉस अटैक हो जाता है, तो उसमें रिस्क रहता है। एट दैट टाइम कई बार वो डिक्लाइन भी कर देता है रिक्वेस्ट को, तो एक बोटलनेक इश्यूज भी कभी कभी आ जाते हैं। तो Etag को देखकर वो ये चीज़ डिसाइड कर सकता है from the client request that the server can tell whether to send the file HTTP 200 or tell the client just to use their local copy HTTP 304। तो ये आपके जनरली पोर्ट नंबर है जो इसके साथ में चलते हैं। This is very very important tag which resides under that URL। Next one is long pooling। Long pooling. Explain what is long pooling. Okay, long polling is a web application. It is a web application development pattern which is used to emulate pushing data from the server to the client। तो emulate करता है, जो डेटा पुश हो रहा होता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, उसको emulate करता है। और ये एक तरह से web application development pattern होता है। Whenever the long polling is used, then client sends a request to the server, client server की तरफ request भेजेगा, and the connection remains intact, connection remain रहेगा, intact रहेगा until the server is ready to send the data to the client। तो तब तक ये कनेक्शन आपका लॉस नहीं हो सकता जब तक कि सर्वर जो है वो डेटा को रिस्पॉन्ड में क्लाइंट को भेज नहीं देता। तो उस केस में वी यूज दिस लॉन्ग पोलिंग वेब डेवलपमेंट पैटर्न। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न होता है जो सर्वर से जो डेटा होता है क्लाइंट की तरफ जा रहा होता है उसको इमुलेट करता है, और दोनों बीच का कनेक्शन तब तक बना रहता है जब तक कि ये आपका डेटा को भेज नहीं देता। दूसरा ये आपको मालूम है, जब हम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करते हैं, देन वी ऑल नो दैट क्लाइंट इज इन एक्टिव मोड, सर्वर इज इन पैसिव मोड। तो क्लाइंट जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा सर्वर को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो वंस क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, देन सर्वर अवेक एंड ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एज पर दैट गिवन रिक्वेस्ट। तो वो तभी रिस्पॉन्ड करता है जब क्लाइंट की तरफ से उसको रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है पहले तो वो बना होना चाहिए। अगर कनेक्शन आपका नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दोनों ही डिवाइस आपके लाइव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्वर डाउन पड़ा हुआ है और आप रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डेटा आपका रिस्पॉन्ड आएगा ही नहीं क्योंकि सर्वर तो डाउन है, एरर दिखा देगा। तो लॉन्ग पोलिंग एक तरह का वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न कह सकते हैं जो कि इम्यूलेट करता है सर्वर जो डेटा भेजता है क्लाइंट को, और इसमें कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में तब तक बना रहता है जब तक कि सर्वर क्लाइंट को डेटा भेज नहीं देता एज पर द गिवन रिक्वेस्ट। वो आ जाता है उसके बाद दैट माइट बी, आप उसको एंड भी कर सकते हो, फ्री भी कर सकते हो। So this is one thing, and the connection remains intact until the server is ready to send data to the client. Along with this, the connection will be closed only after the data is sent back to the client और connection times out errors। तो उसमें कई बार connection आपका times out भी हो जाता है और कई बार आप उसको close भी कर देते हो। जितने भी पोर्ट आपने ओपन किए होते हैं, एक बार communication establish हो गया उसके बाद आप उसको close कर दो। तो पोर्ट्स को close करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपके फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करने जाओगे, अगर पोर्ट्स आपके बिजी होंगे, आप क्लोज नहीं करेंगे, तो वो उस पोर्ट पर आपका कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, एरर आएगी, पोर्ट इज बिजी। तो ये प्रैक्टिस होता है कि जब भी आप क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो भी आपके सोर्स पोर्ट्स हैं या जो डेस्टिनेशन है, उनके बीच में जब भी आप यूज़ कर लें उसके बाद आप उसको क्लोज कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि डिफॉल्ट आपके पोर्ट्स लेते हैं, तो आपको मैनुअली उनको चेंज भी करना पड़ जाता है। जैसे ओरेकल के साथ मैंने कई बार देखा है कि
and I run some application on Eclipse, or I work with Oracle and I work with some other NetBeans के साथ में, तो वहाँ पर अगर मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम होती है, सॉकेट आपका एक तरह से वहाँ पर इन्वोक नहीं हो पाता, तो वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो मैनुअली जाके कई बार या तो ओरेकल को आप हटा ही दीजिए अपने सिस्टम से ही, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और उस कोड को फ्री करा लीजिए, या फिर मैनुअली आप चेंज कर दीजिए, जिससे कि जब भी आप उसको रन करेंगे, सर्वलेट को चलाएंगे, तो उस केस में आपका ये प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं वंस वी डोंट क्लोज सच रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाट इज डीटीडी, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, क्या होता है। मेंशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी डेटा एंड पीसी डेटा इन डीटीडी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। अभी आप लोगों ने डॉक भी सुना होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो एक एपीआई की तरह काम करता है एक्सएमएल और एचटीएमएल के बीच में। उसमें आपको डिफरेंट एक कंपोनेंट होता है, वो डीएसटीएमएल का, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपके पास में डीटीडी है, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है, तो सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन या डेफिनेशन ही होगा। तो इफ समवन आस्क यू डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, सो यू मे आंसर दैट DTD means document type definition rather than declaration, which defines the structure, legal elements and attributes of an XML document. Extensive markup language जो होती है उसके attributes को ये define करता है। तो यहाँ पर आपके पास में बहुत important है कि XML का आपको आइडिया होना चाहिए। HTML में आप काम कर चुके हैं, HTML and XML both are markup languages होती हैं। फ़र्क ये होता है, XML में आप यूज़र टैग बना सकते हो, HTML में आप प्री डिफाइंड टैग यूज़ करते हो। XML is an extensible markup language which is designed to carry or transport and store data. तो XML का जनरली जो यूज़ होता है वो डेटा को कैरी करने में होता है, उसको ट्रांसपोर्ट पर्पस से करते हैं या स्टोरेज भी करते हैं डेटा की, तो वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन में। XML tags are not as predefined as HTML, so but we can define our own user tags for simplicity, बना सकते हैं, and it mainly concentrates on storing of data, not on displaying of data. तो जब भी हम XML की बात करते हैं तो वेब पर हम जनरली बोलते हैं कि डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या स्टोर हो रहा है। तो डेटा को डिस्प्ले कराने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो डेटा है आपका उसको स्टोरेज आप प्रोवाइड करा पाएँ यूजिंग XML। जो मेन फीचर होती है XML की, एक तो ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है, ईजी टू लर्न, ईजी टू इम्प्लीमेंट। उसके अलावा XML फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स एंड नो एडिटर इज रिक्वायर, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। इट इज एक्सटेंसिबल एंड स्पेसिफाई द स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ टेक्स्ट। तो कम टू द पॉइंट DTD, जो कि डॉक्यूमेंट टाइप और डेफिनेशन आपको मैंने बताया था, इसमें रहता है। अब इसमें दो रहते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी डेटा एंड पीसी डेटा। सो पीसी डेटा इज ए पार्स्ड कैरेक्टर डेटा एंड XML parsers usually parse all the text in an XML document. तो parsers आप लोगों ने कंपाइलर में पढ़े होंगे, स्कैनर और parsers। तो वहाँ पर आपको पार्सर्स होते हैं, वो जो भी डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, उसको पार्स करता है इंटायर को, लेफ्ट टू राइट, या पार्सर आपके बॉटम अप भी होते हैं और टॉप डाउन भी होते हैं। तो एक तरह से जो जितना भी टेक्स्ट होता है XML में, जो डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो ओवर नेट, तो उसको एक तरह से पार्स करता है। पीसी डेटा इज पार्स करेक्टर डेटा एंड सी डेटा इज एन अनपार्स करेक्टर डेटा। द टर्म सी डेटा is used about the text data and should not be parsed by XML parser. तो अगर कोई डिफरेंस पूछता है, यू कैन से ओके सर, इसी डेटा में हम XML पार्सर का यूज़ करते हैं, जो कि XML डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होता है उसको पार्स करने का काम करता है, जबकि सी डेटा में हम XML पार्सर यूज़ नहीं करते, एंड इट इज़ जस्ट अनपार्स्ड कैरेक्टर डेटा। द सी डेटा इज यूज्ड अबाउट टेक्स्ट डेटा, and it doesn't necessary that we have to use XML parser to parse in that text which is present in XML document. So this is a basic difference. दूसरा यहाँ पे ये भी बोला जाता है to decrease the load time of a web application,
जो भी लोड टाइम होता है वेब एप्लीकेशन का उसको डिक्रीज करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम ऑफ दीज रूल्स, तो वो चीज़ रहती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम टिप्स यू कैन यूज रिड्यूस द लोड टाइम ऑफ वेब एप्लीकेशन दैट यू हैव रिटन। तो एनीवन कैन टेल मी कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। जब आप एक बार देखते हो कि जो वेबसाइट मैंने पब्लिश की है उसको लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, इट्स वेरी फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर एज वेल। So what sort of stuff you require to make sure that that loading time is going to be reduced? Anyway. तो हमारी साइट हैवी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें आप उसमें से हटा देंगे? सर जो एक्स्ट्रा हटाएंगे सर या जो हटाने की जरूरत नहीं है कुछ भी? हटाने की जरूरत, सर जो एक्स्ट्रा जो होंगे मतलब फंक्शनैलिटीज होंगी और कुछ होगा सर उनको कम करेंगे, मतलब जो लिमिटेड यूज होगा उसको जो इफिशिएंट वे में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारी साइट को ओके। उससे। और जो जैसे कि सर ज़्यादा इमेजेस और बैकग्राउंड ये सब ये लगाएंगे नहीं, मतलब कम लिमिटेड वे में हम करेंगे सर, ताकि जो मुझको हमारी लगता है वेबसाइट का लोड है। जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स आप इंपोर्ट करते हो जी सर। उन फाइल्स को आपको या तो इंटरनल की तरह यूज करना होगा या फिर आपको उन्हें मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि ये सर। आप CSS भी एज एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हैं। हाँ तो जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास .js फाइल्स आप अलग से यूज कर सकते हैं। ये सर। तो आपको ये तो देखना होगा कि एक्सटर्नल इट में इज सर, टेकिंग टू मच टाइम। या टेल। एक्सटर्नल में सर वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा सर, क्योंकि एक ही अलग अलग फाइल होंगी, तो सर ज़्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा उसमें? नहीं, उसमें दिक्कत बेटा ये आ जाती है कभी कभी कि जैसे सुबह भी मैंने आज पढ़ा रहा था क्लास में कि अगर वो डिपेंडेंसी है उन फाइल्स की एक दूसरे के ऊपर, और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको वेबसाइट को, तो वो डिपेंडेंसी होने की वजह से कई बार वहाँ पे एरर आ जाती है, यस सर। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। वैसे तो आपके पास ऑप्शंस तो हैं, जैसा कुछ जगह ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जितने भी आपके CSS हैं उनको आप कंबाइन कर लीजिए, उनको आप मिनिफाई कर लीजिए सर JS को बट जो। सर फिर उसमें लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो जाती है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी हाँ, उसमें भी। वो देखो एक दो चीज़ें रहती है बेटा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में बेटा ये होता है कि अगर आप टाइम स्पेस के अपोजिट नेचर होते हैं, कहीं पे एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो गया तो स्टोरेज ज़्यादा हो गई, कहीं पे स्टोरेज ज़्यादा हो गई तो एग्जीक्यूशन स्लो, कहीं पे स्टोरेज कम हो गई तो एग्जीक्यूशन स्लो हो गया। मतलब टाइम और मेमोरी एक दूसरे के अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे यस आपको सर। देखना होता है, एक इंटरमीडिएट अप्रोच आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो देयर आर सो मेनी एक्स फैक्टर्स दैट यू रिक्वायर वंस यू हैव टू रिड्यूस द लुक टाइम ऑफ वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम यहाँ वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन इज ब्रॉडर देन वेबसाइट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो भी जितने भी आपके मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप ऑप्टिमल कर सकते हो, उनके साइज को लेकर उसको रिड्यूस कर सकते हो, या फिर जो एक्सटर्नल शीट्स हैं आपकी उसको आप एज ए इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आई कैन रिड्यूस सम लाइन ऑफ कोड, सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। लाइन ऑफ कोड का कर सकते हैं, जो इंडक्टिव वेरिएबल्स टाइप के कुछ होते हैं, तो अगर वो आप हटा सकते हैं तो दैट डिपेंडेंसी यू कैन क्लोज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोड टाइम ऑफ डेफिनेटली ये आप रिड्यूस कर पाएंगे। There is next यस सर। question, mention what is correct way to include JavaScript into your HTML। ये तो पढ़ा होगा आपने। करेक्ट तरीका क्या है JavaScript को आपके HTML में इंक्लूड करने का? इसमें इनलाइन हैंडलर्स होते सर हैं, यस सर। इनलाइन एच आर हैंडलर्स। एफ एच आर एफ एच आर एफ उसमें हाँ, उसमें लगाते HRF हैं। है, SRC है, SRC भी यूज करते हैं। लोकेशन ऑफ सर मास्क के डबल कोट्स में, यस डबल सर। कोट्स आप यूज करते हो ना, जावास्क्रिप्ट। तो
उसका आप लोकेशन पास कर दीजिए तो वो फाइल आपकी इंक्लूड हो जाएगी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। Now next is very important question, क्योंकि generally we discuss with each other what is the difference between cookies and local storage। इसका आंसर मैं आप लोग you have to just think and then repeat। कुकीज में और लोकल स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है? थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। ओके, रिस्पॉन्ड। Okay, see, when we talk about the cookies, data accessible both at client side and server side। तो इसमें अगर हम client और server side दोनों की बात करें तो जो data accessibility होती है वो दोनों साइड पर होती है। And the data is sent to the server side with every cookie request। और server side पर डेटा जाता है, जैसे ही आप किसी कुकी की रिक्वेस्ट के लिए कहेंगे तो डेटा आपका जाता है। इसकी मदद से कहीं ना कहीं सर्चिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो हिस्ट्री आपकी होती है, जो जो भी आपने वेब पेजेस वगैरह वेबसाइट्स विजिट किए होते हैं, तो क्योंकि इसकी मदद से हैपन्स इन दैट हिस्ट्री, तो कहीं उसका आपकी प्रायोरिटी हो जाती है वंस यू सर्च अगेन। दूसरा, जब लोकल स्टोरेज की बात आती है तो ओनली एट लोकल ब्राउजर साइट डेटा इज एक्सेसिबल। सर्वर कैन नॉट यूज लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज तो नाम ही से लग रहा है कि लोकल स्टैंड एलोन मशीन होगी, तो सर्वर उस डेटा को यूज़ नहीं कर पाएगा। सर्वर इज नॉट गोइंग टू use that data which is local at browser site and data is accessible। server cannot use that one। and deliberately once you talk about post and get, उस तरह के जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो यहाँ पे एक डिफरेंस समझ में आया, कुकीज़ आपका क्लाइंट और सर्वर दोनों पर होता है, जबकि लोकल स्टोरेज में सर्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरा आता है साइज़ का। तो साइज़ में स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कुकीज़ इज 4095 बाइट्स। जो कुकीज़ की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4095 बाइट्स पर कुकीज़ होती है। इतने बाइट्स वो लेता है। अब आप देख लीजिए, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये पर कुकीज़ मैं बता रहा हूँ 4095, विच इज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कुकीज़ इज़ 4095 बाइट्स पर कुकीज़। इतने बिट्स आपको लेने होंगे, जबकि लोकल स्टोरेज में इट्स अप टू 5 MB पर डोमेन। तो लोकल में आपका 5 MB रहता है पर डोमेन, क्योंकि साइज रहता है। उसके बाद में तीसरा आता है एक्सपायरेशन। कुकीज़ हैव एक्सपायरेशन एंड कुकीज़ डेटा गेट्स डिलीटेड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद में कुकीज़ डेटा डिलीट हो जाता है, और इसका एक्सपायरेशन टाइम जो होता है वो होता है। और लोकल जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, देयर इज़ नो एक्सपायरेशन, हैज़ टू रिमूव मैनुअली। तो उसमें हमें मैनुअली रिमूव करना होता है। तो अगर हम इन 3 डिफरेंसेस के बेसिस पे देखें, एक्सपायरेशन के बेसिस पे यस एक्सपायरेशन होता है तो डिलीट भी हो जाता है कुकीज़, जबकि लोकल स्टोरेज में अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें हमें मैनुअली डिलीट करना होता है। जबकि वंस वी टॉक अबाउट द साइज स्पेसिफिक, सो 4095 बाइट्स पर कुकीज़ जो भी स्टोरेज रहती है, जबकि लोकल स्टोरेज का 5 MB पर डोमेन रहता है। उसके अलावा कुकीज़ का क्लाइंट और सर्वर दोनों का ही साइड पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, जबकि लोकल में सर्वर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सिविल R&D ऑन नेट आपको ये मिल जाएगा। और ये ज़रूरी है कि when you are preparing, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए, जब भी आप कंपनी में अभी आप इंटरव्यू दे रहे होगे, एक चीज़ आप समझ लो कि किसी भी कंपनी के जब इंटरव्यू में आप अपियर होते हो
तो आप उस कंपनी की स्टडी जरूर कर लिया करिए, वो कंपनी का क्या उसका एक जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में कि क्या डेवलप करती है, डेवलपमेंट में है या ट्रबल शूट में है या टेस्टिंग में है। नॉलेज अबाउट कंपनी अपेड ये हाँ, एक तो चीज़, 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, और आप करते भी होगे ज़्यादातर। कुछ बच्चे जो अभी जो प्लेसमेंट हुए हैं उसमें आप लोगों ने ये सब प्रोसेस किया होगा। तो एक तो कंपनी की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यू। दूसरा, अगर इंटरनेट पर जैसे fresherwords.com है और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उस कंपनी के अगर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है। अभी तो क्या है, ऑनलाइन है, तो आप कॉलेज के थ्रू अपीयर होते हो। जब आप ऑफलाइन जाओगे तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी। वहाँ पर आप कंपनी के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो सॉल्व दोस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करिए। और बहुत से लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल कैरियर। तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेपरों में गया, वो प्लेस हो गया, तो अब वो अपना जो पूरा एक्सपीरियंस रहा उसका कि कितने राउंड हुए, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पॉजिटिव नोट्स उस पर डालते हैं इंटरनेट पर अपने ब्लॉग्स में। तो कोशिश करिए कि वहाँ से आपको कुछ डिटेल्स मिलता कि अभी ये कंपनी अगर आई थी तो इसका लेटेस्ट जो ड्राइव हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो उससे रिलेटेड अगर आपको मिलता है तो वो कंटेंट आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इन जनरल क्वेश्चन नॉट फेयर के वही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर कंपनी मान लो 2 कॉलेजेस में जा रही है तो बिल्कुल अलग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, वो आ किस लिए रहे हैं, किस रोल के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है आपकी कोडिंग अच्छी है, यू शुड गो विद डेवलपमेंट। बट आपको लगता है कोडिंग अच्छी नहीं है, यू शुड गो विद डेटाबेस, यू मे गो विद टेस्टिंग एज वेल। डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। हर फील्ड का अपना एक स्कोप है, हर फील्ड में पैसा है। बट डू दिस सम होमवर्क बिफोर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। वो तो अपना प्रेजेंटेशन देंगे ही, हर कंपनी का ये होता है, वो अपना प्रेजेंटेशन देती है पहले जब वॉकिंग के लिए आती है। बट ये जो प्रोटोकॉल होती है ये आपकी यूनिवर्सिटी में फॉलो हो जाती है। बट जब आप ऑफ कैंपस जाते हो तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर फॉर ओपन कैंपस ड्राइव। तो वहाँ पर फिर आपको ये स्टडी पहले से करना पड़ेगा। तो एक तो कंपनी के बारे में पता हो, कंपनी अगर जो उसका जो वॉकिंग लेटेस्ट वॉकिंग जहाँ हुए हैं उसका थोड़ा सा R&D आपको करना पड़ेगा। किस रोल के लिए वो हायर कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। उसका जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। देन इतना करने के बाद में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली यू फील बेटर। वहाँ पर फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले बेटर। इसीलिए ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज जो टाइम आपके पास होता है यू हैव टू कैश ऑन दैट, उसको कैश करना चाहिए। ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी मैंने आपका अटेंडेंस ले लिया है और एक अपना मेजर प्रोजेक्ट जो है उसको अच्छे से डेवलप कीजिए, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाता है। आपकी इंटर्नशिप के बारे में पूछा ही पूछा जाता है, तो उसमें जो है वो अपना पूरा फोकस रखिए। मेजर प्रोजेक्ट्स तो आप आज से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जाएंगे तो भी पूछा जाएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाया था फाइनल सेम में वो क्या था। एक अपने स्किल सेट्स होना चाहिए, और वो स्टडी करके जाएंगे तो पता होगा कि क्या पूछा जाएगा। कुछ कोर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे पूछा ही पूछा जाता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, पूछा ही पूछा जाएगा। एल्गोरिथम एनालिसिस से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डेटाबेस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल पूछ लेते हैं। अब आजकल जो है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का काफ़ी स्कोप है, तो बहुत सी कंपनी जो है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से भी क्वेश्चंस कर लेती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन कर लेती है।
तो ये सब लेकिन आपको पता तभी लग पाएगा जब आप वॉक-इन का पूरा स्टडी करोगे। जो रिसेंट वॉक-इन्स हुए हैं उसमें कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन, पैकेजेस के बारे में भी पता लग जाएगा। पैकेजेस क्या मिल रहा है, कितना दे रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं। These all things important for you guys, और इसको अच्छे से करिए। Yes. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर।